Good morning, children. So in the previous class, that is yesterday's class, we have studied transformation experiment. It's an experiment conducted by Frederick Griffith, where he found that when the rough variety of the Diplococcus pneumoniae is injected into the mice, mice does not get pneumonia. When the smooth variety of Diplococcus pneumoniae bacteria are introduced into the mice, they get pneumonia and they die out of pneumonia. Then in the third step, third experiment, what he did when he boiled the smooth variety of the Diplococcus pneumoniae. So on boiling, we know that on heating or on boiling, the bacteria dies. So the bacteria got died, and then when such bacteria were injected into the Diplococcus pneumoniae, the mice did not die because they did not get suffered from pneumonia. The fourth experiment was very strange, where what he did, he just took some of the heat-killed smooth variety of the Diplococcus pneumoniae and added some live variety of the rough strain. Both of them were individually not able to cause disease, but when they were mixed together and then that were injected into the mice, what he found that the mice used to get die, they used to get pneumonia and they used to die. On study or isolation of study of their blood, he could isolate some of the live S variety. Now the question is where this live S variety come from? Where has this live S variety come from? Whereas whatever S variety he had taken, they were the dead one. So how those dead bacteria became alive? It is not possible. Dead one cannot become alive. Okay. That means the second option may be correct. That is, the rough strain have modified or transformed into the smooth form. That may be possible. Yes, that was his idea, and he put it in that way. He said that the rough strain that have transformed into smooth strain. So that much we already studied. And then we also studied that later on the same experiment was conducted by three different scientists, that is Evray, McLeod and McCartney, and they reached to the same conclusion. They also found that whatever he had said was exactly correct. Okay? So from the book you see, this is here in 1928, Frederick Griffith in a series of experiments in the Streptococcus pneumoniae. Diplococcus or Streptococcus or bacterium responsible for pneumonia witnessed the miraculous transformation of the bacteria. Miraculous transformation. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, ऐसा तो होने ही नहीं किया, ऐसे कैसे हो जाए? मतलब मैंने आपको पहले भी पता कि his wonder was so great. उसने कहा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके हिसाब से ये कुछ स्ट्रेंज बात थी कि भैया वो जो है रफ स्ट्रेन जो है वो स्मूथ स्ट्रेन के अंदर चेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? वन कैन नेवर बिलीव दैट. मैं इसको लिख देता हूँ, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन. आगे ठीक है. Now during the course of this experiment, a living organism, that the bacteria had changed in the physical. अब ये इसके एक्सपेरिमेंट है, इसको अब हम छोड़ देते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस. नाउ आगे देखते हैं. नाउ प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड ऑल्ड्रिच, एवरे, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैककार्टे, इनके नाम आप याद कर लीजिए, है ना. मैंने आपको सरनेम बता दिए थे, एवरे, मैक्लॉयड एंड मैककार्टे, है ना. एंड जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन. तो इनसे पहले, before this they started their work, people used to think that the genetic material जो है वो क्या होना चाहिए? प्रोटीन. जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए? प्रोटीन. Why they selected protein? The reason is because जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी बहुत सारी वेरिएशंस होनी चाहिए, बहुत सारी वैरायटीज होनी चाहिए. लाइक इफ आई से दैट अगर क्लास के अंदर हम किसी को मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे गुण होने चाहिए. वो रेगुलर होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, मतलब वो क्या कहते हैं, भ्रष्ट नहीं हो कि किसी से भी
समोसा खा ले और उसका नाम नहीं लिखे, ऐसा ना हो, है ना। एंड यू शुड रिपोर्ट एवरीथिंग टू द टीचर एंड यू शुड कैरी आउट सम ऑफ द वर्क व्हिच इज गिवन टू। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज मानी और उसके हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, हु इज दैट। So when we are looking for the material for genetic material, that is more consistent, जो कि genetic material की जैसे काम कर सकता है, तो हमारे सबसे पहले prime importance क्या थी, that the genetic material should be able to produce variety of molecules, so that each character can be क्या कहते हैं denoted by a special molecule। हमको जितने सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत है उतने टाइप के मॉलिक्यूल तो बनाए, जितने टाइप के हमको प्रॉपर्टीज की जरूरत है उतने टाइप के मॉलिक्यूल तो बनाए। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ, अगर सीधी सी बात है, अगर सॉल्ट पे, है ना, अगर मैं कहता हूँ नाक का ये वाला शेप जो है वो सोडियम क्लोराइड के कारण होगा, है ना, इसका जो क्या कहते हैं जो आईब्रोज हैं वो पोटेशियम क्लोराइड के कारण होगा, है ना। द थिकनेस ऑफ द आईब्रोज एंड द शेप ऑफ द आईब्रोज जो रहेंगे, किसका कहाँ तक बाल आएंगे, कहाँ तक आएंगे, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, नॉर्थ वेस्ट कटिंग है, तो वो जो है वो मान लीजिए कॉपर सल्फेट के कारण से। तो ऐसे हमारे पास कितने तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, सो दैट ईच कैरेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय वन। सो सॉल्ट्स आर लिमिटेड, तो वी कैन नोट, तो हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे जाना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी when we are looking out of the protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals वगैरह, तो vitamins are only few, तो वो आउट हो गया। मिनरल्स दे आर आल्सो वेरी फ्यू, तो हट जाओ आप भी। शुगर्स आर आल्सो लिमिटेड, 3 कार्बन वाले ट्रायल्स इनके ज्यादा दो या तीन, दो ही वैरायटी सबके पास है, एक एल्डिहाइड ट्रायल्स और एक कीटोन ट्रायल्स। फिर 4 वाला है, काम ही नहीं आता है। फिर 5 वाला पेंटोज 2 ही तरह के हैं, राइबोस डीऑक्सीराइबोस। 6 वाले 3 तरह के हैं, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। 7 वाला काम ही नहीं आता है ना। तो इस तरह से हमने देखा तो लिमिटेड अमाउंट में शुगर है, वो भी ये काम नहीं कर सकते। फैट लिपिड ये भी लिमिटेड है, सो दे कैन नॉट आल्सो। But when they were studying about the proteins, they found that proteins can be made in infinite combination. So they were forced, they उन्होंने तो उनके दिमाग में घुसा लिया कि ये प्रोटीन ही होना चाहिए। So they worked to determine the biological nature of transforming principle in the Griffith experiment. They purified biochemical proteins, DNA and RNA. I said उसके जो क्रोमोसोम थे उसमें से उन्होंने 3 चीजें निकाली, क्या, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। पूरे सेल में से बैक्टीरिया है कितना छोटा सा तक है, तो उसमें से उसने क्या निकाल लिया, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एग सेल्स, सो दैट व्हिच वन कुड ट्रांसफॉर्म द सेल इनटू एग। तो 3 टेस्ट ट्यूब है उनके पास में। देखो, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3, एंड व्हाट दे गॉट एस प्लेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। Now instead of keeping with the heat killed S strain of this, निकल दिया ये प्रोटीन जिसमें निकाल के डीएनए उसमें निकाल के आरएनए, and they are taking the rough strain and added it to this. Then from there they tested it to the mice, and now they were seeing that what happens to the mice. ठीक है, अब देखते हैं कि माइस में क्या होता है। So they saw that only when the डीएनए वाला उड़ाला है तभी माइस मरता है, यही वाला मरा है, ये जिंदा है वही जिंदा है। तो होना हो जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, डीएनए। दूसरा एक्सपेरिमेंट ने किया, they also discovered that the protein digesting enzyme, that is proteases, and RNA digesting enzyme, RNAs, did not affect transformation। अगर इसके अंदर ये चीजें अलग नहीं करते हैं, स्ट्रेन ले लेते हैं, स्ट्रेन ले लेते हैं और उसके 3 बैक्टीरिया, 3 टेस्ट ले लेते हैं, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, मतलब स्ट्रेन इन कल्चर 1, कल्चर 2 and कल्चर 3, and in this they added proteases, in this they added DNA, in this they added RNA, and after some time they added substance। तो फिर वो क्या देखते हैं कि प्रोटीन वाला बीमारी करता ही नहीं, ठीक है, वो जिंदा है। ये इसका स्टेन मर गया, डीएनए डाइजेस्ट हो गए, तो वो भी बीमारी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए,
है ना। अलग अलग केस के अंदर उन्होंने देखा तो क्या मालूम पड़ा कि जब डीएनए डालते हैं तो चूहा जिंदा रहता है ना, उसको निमोनिया नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज the smooth chain DNA has been denatured. But when the DNAs are not added, then the mice die. So he said, they come to the conclusion that it is the DNA which is the genetic material. ठीक है, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टिपिकल था, कई सारे लोगों को समझ नहीं आया, बट आज की तारीख में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज बाय द टाइम दिस थिंग्स आर कम टू अस वी गॉट प्लेंटी ऑफ नॉलेज। तो हमने कहा कि भैया वो जो अगर आरएनए डालेंगे तो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनए को नहीं कर रहा, प्रोटीन को नहीं कर रहा, तो क्योंकि उसके अंदर डीएनए है तो वो बीमार कर देगा उसको और चूहा मर जाएगा। प्रोटीन डालेंगे तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है बट नॉट द आरएनए एंड डीएनए, तो वो भी मर जाएगा। पर जब डीएनए डाला है तो वो नहीं मरता। व्हाई? बिकॉज द डीएनए इज बीन डीनेचर्ड। सो डीएनए इज बीन डीनेचर्ड, सो दैट यूज्ड टू क्या कहते हैं, नॉट ट्रांसफॉर्म द स्मूथ वैरायटी इनटू रफ वैरायटी। तो ये थी, आई थिंक दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गए होंगे। पिछले क्लास में मैंने इसको अच्छे से समझा दिया था, आज केवल मैंने इसका रिवीजन करना। नाउ we had to study about the genetic material, but many people अभी भी इसको विश्वास नहीं कर रहे कि भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल। बोले अरे यार ये बात है क्या, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू बिलीव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मैं कहा यार हो गया होगा, हुआ क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो रक्सटेन है उसने जब उसने थोड़ा आलसपन करा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज ओन क्या कहते हैं DNA, what he did, he took some pieces of the DNA from the smooth variety, and as a result they are transformed. जैसे क्या होता है ना कि आपके पास में कोई पुराना मॉडल की कार है, उसका हेडलाइट खराब हो गया, अब आपके पास में वो वाली हेडलाइट बाजार में मिल नहीं रही है, so what you can do, मान लीजिए आपकी कार है, इसका हेडलाइट है और ये हेडलाइन जो है वो साले से टूट गई, डैमेज हो गई, है ना। तो अपन इसको दूसरे का बना देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे ये का बना देते हैं, नहीं ना, एंड ड्यू टू सम रीजन दिस लाइट इज डैमेज। नाउ यू हैव टू चेंज दिस, केवल आपको क्या कहते हैं राइट वाला लाइट चेंज करना, बट आपको मिल नहीं रहा, वो पुराने मॉडल का, वो डिसकंटिन्यू हो गया, नए मॉडल का लाइट कुछ अलग टाइप का है। सो व्हाट इज द ऑप्शन that you get the new model of light and fix in both, replace both. हमने इसमें न्यू मॉडल वाला लाइट लगा दिया, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का है, टू पार्ट में डिवाइडेड, और यहाँ पे इसके जंक सिग्नल है पहले वाले में साइड में, और क्या हो गया हमारा कार बल्कि अब नई मॉडल की दिखने लग गई। So what we had done, we had just taken the different type of headlamp. ये जो स्मूथ रफ वैरायटी थे उन्होंने यही किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यूक्लियोटाइड दे हैव टेकन द एंटायर सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्मूथ वन, और स्मूथ वन का डीएनए लेने से क्या है, नाउ दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन कैप्सूल, एज अ रिजल्ट दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द रफ टू। तो ये प्रॉपर्टी केवल डीएनए की है, had DNA been not there they were not able to perform this. So the change of the property from the rough one to smooth one is actually a genetic effect, and that could be done only by DNA. तो ये उसका एनालिसिस था, बट मेनी पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो तुम फालतू की बातें कर रहे हो, ये कोई बात थोड़ी है, दिस इज नॉट एन एविडेंस कि हम ये मान लें कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्वाइट लेट, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years, टू मोर साइंटिस्ट थे, उनके नाम थे एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। हार्शे एंड चेज ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास में क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस इन व्हिच द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट, डीएनए एंड प्रोटीन। सो व्हाट दे डिड, जो डीएनए है उनको तो उन्होंने रेडियोएक्टिवली लेबल कर दिया बाय यूजिंग व्हाट यू कॉल फॉस्फेट, रेडियोएक्टिव P32 वाला फॉस्फोरस के मीडियम में उसको कल्चर करा, तो ऑल देयर डीएनए बिकम रेडियोएक्टिव, हेवी हो गए।
ठीक है, P31 की जगह ये P32, so they are heavy. And in second colony, मतलब वो टेस्ट ट्यूब ये in test tube 1 P31 का P32 का सॉल्व किया and इनके कल्चर होता है, so all their DNA become P32, so ये हमारा bacterium A है and in which the DNA is containing P32. In the culture 2 they are taken S35, S35. So here whatever viruses were there, their protein is cold, not this, but their protein became radioactive, not radioactive, they were heavy. Now they were allowed to infect bacteria, E. coli. They were allowed to infect E. coli. ठीक है, मैंने एक बनाया, बट इन कॉलोनी देना मिनी, तो मान लीजिए 100 ऐसे हैं 200 हमने बैक्टीरिया ले लिए, उनको अलाउ कर दिया इंफेक्ट करने, करोगे तो दे मस्ट हैव इन्फेक्टेड. आफ्टर इन्फेक्शन they have taken them in the test tube and they are sedimented. Now sediment करने के लिए टेस्ट ट्यूब उस जमाने में नहीं, आज हम सेडिमेंटेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिक्सी लिया, मिक्सी जिसमें आप लस्सी बनाते हैं, गर्मियों के टाइम में लस्सी करीब 100 करनी है, मैंगो शेक करते हो. तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा जो पूरा कल्चर है जिसके अंदर ये वायरस और ये ई कोलाई रखे हैं, उसको पूरे को मिक्सी में डाल दिया. So when this was rotated, P32 was heavy, ठीक है, that came down and the viruses, sorry, P32 जो था वो ऊपर ही है वे के फॉर्म, क्योंकि वो अंदर गए, they did not infect the virus, है ना. So that remain on the supernatant. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, this is the test tube, so this is the solution. So all the P32 was there, P32 वाले radioactivity effect, and all E. coli are there, and the E. coli are not radioactive. That means क्या कि that ये है यहाँ पर P32 वाला radioactive substance यहाँ पे मिल रहा है. The radioactivity they found here, and these are non-radioactive. So it clearly gives an indication that the radioactivity was actually present in the phosphorus, and that is why they infected the E. coli. That means when these virus infect E. coli, only the phosphorus containing part DNA is entering in it, and the non-phosphorus, non-radioactive sulfur remains out. On the other hand, in this experiment, when the experiment was conducted, the supernatant was containing radioactive sulfur. तो यहाँ पर radioactivity कहाँ मिली है इसको, यहाँ मिली, और यहाँ जो E. coli है वो नॉन रेडियोएक्टिव. तो नॉन रेडियोएक्टिव होने का मतलब क्या है, इसमें सल्फर गया ही नहीं, ठीक है, इसमें सल्फर गया, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट शोइंग रेडियोएक्टिविटी, है ना. तो रेडियोएक्टिविटी इज शोन बाय दैट पार्ट in which the P was 32. E. coli वो वाले E. coli रेडियोएक्टिव हो गए जिसमें P32 phosphorus 32 और रेडियोएक्टिव phosphorus 32, not in the one in which P35 type of sulfur is there. So it clearly indicates that it is the phosphorus which is phosphorus containing DNA which is causing the infection and multiplication. And multiplication is a sure sign of genetic nature. So this experiment, this one, the second one, I'll explain you once again tomorrow. आज सिर्फ इतना ही, है ना. मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो गया, एक्सपेरिमेंट पढ़ाते. Good day children, enjoy your day.